students, I welcome you all to our Springdale Senior Secondary School online learning platform. Today we will be dealing class 6 chapter number 19 India under the Mauryan and the Gupta's dynasty. In this video lecture we will get to know about what is an empire, how it is formed, sources, Chanakya, ruler of Mauryan Empire, Chandragupta Maurya, Bindusar, Ashoka, the war, Ashoka's Dhamma, support to Buddhism, welfare measures, Gupta Empire, Chandragupta I, Samundragupta, Chandragupta II, Vikramaditya, Golden Age. What is an empire? An empire is a large kingdom which is spread over a vast area. It includes people of many languages and culture. एम्पायर एक बहुत बड़ा किंगडम होता है किसी भी किंग का जो बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ होता है। वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर और लैंग्वेज के पीपल अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे जो रूल करता है उस एम्पायर को उसे एम्परर बोला जाता है। It is formed when one kingdom conquered the other through military power and make a larger kingdom. ये तब बनता है जब एक किंगडम दूसरे किंगडम को विन कर देता है बैटल में मिलिट्री पावर्स से और वो जो लार्ज एरिया है उसी किंगडम में मर्ज हो जाता है। Sources: The principal source of information about Mauryan Empire are the two books. Mauryan Empire के बारे में 2 बुक से पता चला था। Kautilya Ardhashastra and Megasthenes Indrika. Kautilya Ardhashastra provide information about administration कि किस तरीके से गवर्न किया जाता है, रूल किया जाता है, वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताया था। Megasthenes Indrika give detail about the Mauryan administration, the capital of Patliputra, Mauryan military organization, social life. किस तरीके से गवर्न करना है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, सोशल लाइफ को उनकी चली थी, ये सारा कुछ Megasthenes Indrika में था। We are discussing about great Acharya Chanakya, who was a teacher of political science in the University of Takshila. Dhanananda of the Nanda dynasty ruled over Magadha. जब मगध में धनानंदा नाम के रूलर रूल करते थे नंदा डायनेस्टी पर, उस टाइम में चाणक्य पॉलिटिकल साइंस के यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला में टीचर थे। पीपल वर डिससेटिस्फाइड एंड अनहैप्पी अंडर द रूल। उस टाइम में लोग सेटिस्फाइड नहीं थे और अनहैप्पी भी थे उनके रूलर से। चाणक्य went to king of Dhanananda court but was insulted by the king. Feeling outraged, he vowed out he would not tie up his shikha until Dhanananda was removed from the throne. जब चाणक्य धनानंदा के कोर्ट में गए तो उस किंग ने चाणक्य को इंसल्ट फील कराई और उस इंसल्ट से उन्होंने ये प्रण लिया कि कुछ भी हो जाए अब वो धनानंदा को इस थ्रोन से रिमूव कर देंगे। He found a student in the form of Chandragupta Maurya, who was a decent member of Nanda dynasty but was living in exile. उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को नंदा डायनेस्टी से फाउंड किया जो बहुत ही डिसेंट मेंबर था और वो वनवास में टाइम स्पेंड कर रहा था। He taught and trained and turned him into a able leader. उन्होंने उन्हें पढ़ाया, ट्रेंड किया एक एबल रूलर के फॉर्म में।
Chanakya, along with Chandragupta, attacked the Nanda dynasty and emerged victorious. चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ नंदा डायनेस्टी पर अटैक किया और उस समय विक्ट्री विन की. Chandragupta was able to win the battle because of the war trick of चाणक्य. चंद्रगुप्त ने उस टाइम में जो बैटल विन किया था वो सभी चाणक्य के वॉर टैट्रिक से ही. Discussing about the ruler of Mauryan Empire, Chandragupta Maurya 321 to 297 BCE. The founder of Mauryan Empire was Chandragupta Maurya. He overthrew the Nanda ruler Dhanananda with the help of Chanakya. जैसा कि हमने लास्ट चाणक्य के बारे में पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा ही था कि चाणक्य की हेल्प से उनके टैट्रिक से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंदा जो नंदा डायनेस्टी के रूलर थे उन्हें डिफीट किया. Chandragupta Maurya built an empire which includes Bihar, part of Orissa, extended up to Afghanistan, Balochistan. उन्होंने अपने एम्पायर को बिहार, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक एक्सटेंड कर दिया था. ही बिकेम अ जैन आचार्य और फिर उसके बाद वो जैन आचार्य बन गए थे एंड मूव टू साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में चले गए थे एंड स्पेंड हिज लास्ट डेज इन कर्नाटका और उन्होंने अपना जो लास्ट टाइम था वो कर्नाटका में स्पेंड किया था. सर 297 to 273 BCE, Chandragupta was succeeded by his son Bindusar. Under him, the Mauryan Empire extended southwards. He was a man of varied interest. अब जो मौर्यन एम्पायर था वो बिंदुसार रूल कर रहे थे और उनके टाइम में मौर्यन एम्पायर साउथवर्ड की तरफ एक्सटेंड हो चुका था. जो बिंदुसार थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे दूसरे स्किल्स में. ही मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन लाइक हिज फादर हैड स्टैब्लिश और उन्होंने भी सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाया था जैसे उनके फादर चंद्रगुप्त मौर्य ने सबके साथ बनाया था. ही बिलीव इन द आजीविका फिलॉसफी और वो आजीविका फिलॉसफी को फॉलो करते थे, उसमें बिलीव करते थे. Ashoka 273 to 232 BCE. Ashoka was most famous Mauryan and greatest king. अशोका बहुत ही ज़्यादा फेमस और ग्रेटेस्ट किंग थे इंडिया के. He gave up war and adopted a policy of peace and tolerance. उन्होंने वॉर करने की जो पॉलिसी थी उसे गिव अप कर लिया था और बहुत ही पीसफुली और टॉलरेंस के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे. अशोका conquered Kalinga, the kingdom in South India which none of his ancestors could. और अशोका कलिंगा को conquered करना चाहते थे जो कि उनके किसी भी एंसेस्टर ने नहीं किया था. Kalinga War. There were several reasons why Ashoka planned to win Kaling. बहुत सारे रीजन थे जिससे अशोका कलिंग को विन करना चाहते थे. द होल ऑफ इंडिया वॉज अंडर द रूल ऑफ मौर्यन एम्पायर एक्सेप्ट कलिंग वॉज ओनली लेफ्ट आउट. मौर्यन एम्पायर ने एक कोई भी ऐसा प्लेस नहीं था जिसको एरिया पे रूल नहीं किया था. ओनली वन एरिया ही लेफ्ट आउट बचा था. पोजीशन ऑफ कलिंग एम्पायर वॉज कंट्रोल द सी रूट ऑफ साउथ इंडिया. दी सी रूट वुड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ अशोका.
वो जो कलिंग एम्पायर ने सी रूट ऑफ साउथ इंडिया पे रूल और कंट्रोल कर रखा था, तो वो अशोका उसको कॉन्कर्ड करके खुद रूल करना चाहते थे उस साउथ इंडियन रूट पे। Kaling was a fertile land and it was located between Godavari and Mahanadi. वो एक बहुत ही fertile land थी। Ashoka attacked Kaling in 261 BCE. Magad army marched toward Kaling. Ashoka was leading his army. और वो जो मगध की जो आर्मी थी वो कलिंग की तरफ जा रही थी और उधर जो अशोका थे वो उस आर्मी को लीड कर रहे थे। कलिंग टर्न इनटू अ बैटलफील्ड और कलिंग पूरा बैटलफील्ड के अंदर कन्वर्ट और टर्न हो चुका था। फाइनली कलिंग वॉज कैप्चर और कलिंग को मगध आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। द डेथ डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग अफेक्ट द किंग डीपली। जिस तरीके से उस वॉर में डेथ हुई थी, सफरिंग हुई, वो सब चीज़ें लाइफ के लॉसेस हुए, उस सब चीज़ों से वहाँ का जो किंग थे वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुए। इंस्टेड ऑफ गिविंग जॉय हिज विक्ट्री गेव मोर पेन टू द किंग। खुशी देने के बजाय वो जो उनकी विक्ट्री है उनसे काफ़ी उनको पेन हुआ। He vowed not to fight war in the future and became a Buddhist. उन्होंने ये प्रण लिया कि फ्यूचर में वो कभी भी वॉर नहीं करेंगे और बुद्धिस्ट बन गए। He adopted the policy of धम्मा विजया और उन्होंने धम्मा विजया की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी। Ashoka's Dhamma. Dhamma is a word which means religious duty. मतलब हमारी कुछ रिलीजियस के तरफ भी कुछ ड्यूटीज़ है वो ये बताता है। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट इट। वो इधर उधर घूमते रहते थे, को इसके बारे में अवेयर करवाते थे। प्रिंसिपल ऑफ धम्मा वर फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा। वो ये बताते थे कि आपको सबको अहिंसा का जो पाथ है उसको फॉलो करना चाहिए। स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा ट्रुथ ही बोलना चाहिए। रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, उन्हें ये भी बताते थे कि हमें दूसरों के रिलीजियस को भी रिस्पेक्ट करना है। बी काइंड टू ऑल, हमें सबके साथ अच्छा बिहेवियर, दयालु बन के बिहेव करना है। इंक्लूडिंग सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, भले ही वो हमारे सर्वेंट हो या स्लेव्स। लिव टुगेदर पीसफुली, और हमें बहुत ही पीसफुली के साथ रहना है। Officials were sent to various parts of the world to spread the message of it. जितने भी दूसरे पर्सन उन्होंने एज अ ऑफिशियल अपॉइंट किए थे उन्हें हर एक वर्ल्ड के पार्ट में भेजा गया ताकि वो इस मैसेज को लोगों तक स्प्रेड कर सके। These principles were written on many rocks, pillars, मार्केट प्लेसेस, मार्केट, टेम्पल। इस प्रिंसिपल के बारे में मार्केट में, रॉक्स पे, पिलर्स पे सब जगह लिख दिया था और जितने भी एरिया थे उन सब एरिया में लोगों को अवेयर कराया गया था इन सब प्रिंसिपल्स के बारे में। और उन्होंने अपने ऑफिशियल से ये भी इंस्ट्रक्ट किया था कि जो इलिटरेट हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, उन्हें आप खुद रीड करके बताएंगे इन प्रिंसिपल्स के बारे में। These edicts are found at various places in India, Nepal, Afghanistan, and Pakistan, and are useful in distant lands like Sri Lanka, Egypt, Southeast Asia, and Central Asia. Buddhism. Ashoka became a follower of Buddhism. He provided help to Buddhists, also visited Buddha's birthplace, Lumbini,
and he abolished the Bali text on the people of village. अशोका बुद्धिज़्म के फॉलोअर बन गए थे और जो भी बुद्धिस्ट शांगास थे उनकी हेल्प करते थे। और उसके बाद उन्होंने बुद्धा के जो बर्थ प्लेस थी लुम्बिनी वहाँ पे भी विज़िट किया था और वहाँ के जो पीपल थे उनके ऊपर जो बाली टैक्स था उसे भी रिमूव किया था। मेजर अशोका वॉज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ पीपल। अशोका लोगों के हेल्प करने में और वेलफेयर करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ही बिल्ट रोड, प्लांटेड ट्री ऑन बोथ द साइड, कंस्ट्रक्टेड धर्मशाला, roads, hospital for humans and animals, wells were also dug and tried to solve the problem of people. अशोका ने बहुत ऐसे वर्क किए थे लाइक प्लांटेशन किया था, ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन किए थे और अशोका डिड हिज बेस्ट टू एंश्योर द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल ऑफ हिज एम्पायर। अशोका ने बहुत ही ज़्यादा बेस्ट किया था अपने एम्पायर के लोगों के हैप्पीनेस के लिए। The Gupta Empire, the period around 320 CE to 550 CE is known as the Gupta period in North India. इस पीरियड को गुप्ता पीरियड कहा गया था नॉर्थ इंडिया में। It was ruled for nearly 200 years और 200 years तक यहाँ पे रूल किया गया। The ruler were not only powerful but also great supporter of education, art, culture, science and literature. वो जो यहाँ के रूलर थे वो पावरफुल ही नहीं थे बल्कि वो एजुकेशन, आर्ट, कल्चर, साइंस इन सब चीज़ों के भी सपोर्टर थे। All of them contributed to the development of Indian way of life और सबने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया ताकि द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ, उनकी जो लाइफ है उनमें डेवलपमेंट आ सके। The main sources which tell us about the Gupta period are the Allahabad pillar inscription, remains of temples, coin paintings, record of the Chinese traveler, Kalidas and other famous writer book. Important ruler Chandragupta I 320 to 335 CE. Chandragupta I founded the Gupta Empire around 320 CE. He married Kumar Devi, a princess of Lachavi tribe. चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने गुप्ता एम्पायर को फाउंड किया था 320 CE में और उन्होंने कुमार देवी से मैरिज की थी। उनके बाद ही रूल फ्रॉम मगध टू प्रयाग। His son Samundragupta made the empire even more powerful. उन्होंने रूल करने के बाद उनके जो सन थे समुद्रगुप्ता, उन्होंने इस एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड और पावरफुल बनाया था। समुद्रगुप्ता 335 to 375 CE. Samundragupta was the greatest ruler of Gupta dynasty. Call him the Napoleon of India because of his policy of conquest and expansion. समुद्रगुप्ता बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे गुप्ता अम्पायर के और उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया जाता था। He was a great poet and magician too. He was a follower of Hinduism but supported other religions also. वो हिंदुज़म को फॉलो करते थे पर वो दूसरे रिलीजन्स को भी सपोर्ट करते थे। The प्रयाग प्रशस्ति describe the victories of समुद्रगुप्ता और जो प्रयाग प्रशस्ति थी ने लिखी थी वो सब
समुद्रगुप्ता के विक्ट्रीज को डिस्क्राइब करती है। Defeated 9 rulers in Aryavrata and annexed their territory. He defeated 12 rulers of South India. Their territory were not annexed, but they had to pay him annual tributes. He attacked the king of Eastern India, including Nepal, Assam, and Bengal, agreed to pay tributes, and followed his order. Gupta rulers was not as large as that under the Mauryans. एरिया था वो गुप्ता रूलर्स के पास इतना लार्ज नहीं था मौर्यंस के जितना. द किंग हु गेव टैक्सेस वर नॉट अंडर द कंट्रोल. और जो किंग उस टाइम में टैक्सेस पे करते थे वो किसी के कंट्रोल में नहीं थे. गुप्ता एम्पायर वॉज लिमिटेड ओनली टू द नॉर्थ इंडिया. और जो गुप्ता एम्पायर था वो नॉर्थ इंडिया तक ही लिमिटेड था. Chandragupta II, 375 to 415 CE. Chandragupta II took over the empire after his father. He also called Vikramaditya. चंद्रगुप्त II ने पूरे एम्पायर को ले लिया था उनके फादर की डेथ के बाद और उन्हें विक्रमादित्य के नाम से बुलाया जाता था. During his reign, the Gupta Empire reached its peak. और विक्रमादित्य के टाइम में जो गुप्ता एम्पायर था वो अपने पीक तक पहुंच चुका था. He defeated Shakas and established a trade relation with the western country. और उस टाइम में इन्होंने शाखास को डिफीट करके दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे. मेड द एम्पायर रिचर. और उनसे उसका जो एम्पायर था वो बहुत ही रिच हो गया था. चंद्रगुप्त II was great patron of art and literature. Navratna lived in his court, were the most intelligent scholar of that time. उस टाइम में इनके पास बहुत इंटेलिजेंट स्कॉलर्स थे. कालिदास द फेमस पोएट वॉज वन ऑफ देम. उनमें से जो एक था वो था कालिदास. Chinese tourists came to India during Chandragupta II reign. उस टाइम में बहुत सारे चाइनीज़ टूरिस्ट आए थे चंद्रगुप्ता के II के रेन में. फिजिकल एंड कैपिटल पनिशमेंट डिड नॉट एग्जिस्ट. कोई भी किसी को फिजिकल और कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकता था. Nobody except चांडाल eat meat and drank wine. उस टाइम में कोई भी मीट को नहीं खाता था और ड्रिंक्स नहीं करता था एक्सेप्ट चांडाल. People did not lock their house during this period. Reign was known for people's happiness. और जो उनका किंगडम है वो उनके पीपल के हैप्पीनेस से ही अच्छा माना जाता था. गोल्डन एज. द गुप्ता पीरियड सॉ एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, एस्ट्रोनॉमी. ट्रेड रीच इट्स पीक एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. जिस तरीके से गुप्ता पीरियड ऑल राउंड डेवलपमेंट में बिलीव करता था, एजुकेशन, आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, और उस टाइम में जो उनका ट्रेड था वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से पीस और प्रॉस्पेरिटी के साथ काफ़ी पीक तक पहुंच चुका था. ड्यू टू ऑल, some historians referred this period as golden age. इन सब चीज़ों की वजह से कुछ historians ने इस एज को गोल्डन एज
ऑफ इंडियन हिस्ट्री रेफर किया था।